الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، عزت، جاہ و جلال، ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام صدیقین، شہداء، صالحین پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدسہ کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اس کے رہنے کا بھی انتظام کیا، اور اسے اس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا. یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر: انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، زمین سے اناج اگایا، قسم قسم کے میوے، پھل، فروٹ، اناج، کھجور، گیہوں، چاول، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، زیتون، سب نعمتوں کو دیا. اللہ فرماتے ہیں: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر زمین پر وہ پانی پڑنے کے بعد زمین کو پھاڑ کر کے اس پانی کو جذب کرنے کی اللہ نے اس میں طاقت دی، اور پھر زمین پھٹ کر کے جو پودا اگاتی ہے اس کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا. ہم نے اس زمین میں ہر قسم کا اناج، انگور اور زیتون، کھجور
इस किस्म की सारी नेमतें हमने इंसान के लिए पैदा फरमाई, उसके खाने का हमने इंतजाम किया, वरना इंसान उससे पहले के जो वाक़ियात हमें मिलते हैं कुरान में, अल्लाह ताला ने बनु इसराइल कौम का जिक्र किया है। बनु इसराइल कौम ये मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है। ये दोनों कौमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को, अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनको जो नेमतों जो रिज़्क़ दिया, आसमान से तोशा उतरता था, मन्नो सलवा। अल्लाह ताला ने उसका सूरह बकरा में जिक्र किया और सूरह अंबिया में, कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर बनु इसराइल के वाक़ियात और हालात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। सूरह क़सस में अब उनको एक ये बात बताई गई है कि मन्नो सलवा खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय उन्होंने अल्लाह की नफरमानी की, उसमें लालच और हिर्स किया। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उनके रिज़्क़ को बढ़ाने के, उनके शुक्र गुजारी के बदले में उनके ऊपर नेमतें नाजिल करने के अल्लाह ने बहुत सारी जो है यानी नेमतों को छीन लिया। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो अजाब नाजिल किया वो बंदर और सूअर का अजाब नाजिल किया। दुनिया ही में अल्लाह ताला ने, आज हमें गोश्त में कई किस्म का गोश्त हम खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? मच्छी खाते हैं, गाय खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, हाँ, और हर किस्म का जो अल्लाह ने हलाल किया है जानवर, वो हर किस्म का गोश्त खा रहे हैं। अब ये हमारी रोजी का बंदोबस्त है, लेकिन ये खा करके जो मन्नो सलवा कहते हैं, एक किस्म की जो है मीठी चीज आसमान से नाजिल होती थी। और गोंद, सलवा कहते हैं गोंद को, एक दरख्त में पैदा होता था। वो गोंद और वो मीठी चीज दोनों मिला करके खाने का उनको अल्लाह ने नेमत दिया था, लेकिन उन्होंने उसमें अल्लाह की नफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब का शिकार बना दिया। अल्लाह ताला सारे इंसानों से कह रहे हैं, जब ये सारी नेमतें हमने तुम्हें दिया है, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब यहां अल्लाह ताला के ऊपर सबसे पहले हमें ये यकीन रखना है, अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाने वाला है, अल्लाह पालने वाला है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर बयान फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन का माना क्या है? वो दोनों जहानों की मखलूकात का पालनहार है। पालनहार का मतलब पालने वाला है, उनके रोजे, उनकी रोजी का, उनके खाने पाने का इंतजाम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। यहां तक के इंसान को अगर ये बात बताया जाए कि हमें जो जानते हैं सिर्फ इंसानों के हद तक हमारा इल्म है, अल्लाह ताला जमीन पर बसने वाली हर मखलूक को वो क्या खाता है, कितना खाता है, बराबर खिला रहा है। जानवरों को भी रोजी मिल रही है, हैवानों को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, इंसानों को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, और कीड़े मकोड़ों को भी अल्लाह रोजी दे रहा है, चरिंद परिंद को अल्लाह रोजी दे रहा है। वो क्या खाते हैं वो बेहतर जानता है। जानवर क्या खाते हैं? हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा, हर किस्म का परिंदा मिलेगा, हर किस्म का इंसान मिलेगा। इंसानों में भी चुनकर खाने वाला है, मुझे ये चीज पसंद है मैं नहीं खाता, फिर क्या खाता? इंसान नेमत का, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है, अल्लाह के नेमतों का ऐब निकालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जो तुम्हें रोजी देता है गैर से, वो रोजी अल्लाह की तरफ से होती है, और अल्लाह की उन नेमतों को खा करके उसका शुक्र अदा करो, उसकी इबादत करो, उसके किताब की तिलावत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? इबादत के मामले में तो इतने कमजोर हैं, बिल्कुल गए गुजरे हैं। गिने चुने वक्त में हम नमाज पढ़ते हैं, वो भी हमारी सहूलत के मुताबिक। टाइम मिला तो नमाज को आने वाले, नहीं मिला नहीं। टाइम मिला तो मस्जिद को जाने वाले, टाइम नहीं मिला तो नहीं। हमने फुर्सत मिली तो हम इबादत करेंगे, फुर्सत नहीं है तो नहीं।
ये क्या हुआ, हम ना सहूलत है तो अल्लाह ताला हमें मौका दिया है, सहूलत दिया है, साहब दिया है, इनामात की बारिश की है हमारे ऊपर, एक नहीं बल्कि इस रूए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक की रोजी का जिम्मेदार है। कुरान में सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन। सूरह ज़ारियात की आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है और जैसे चाहता है रोजी देता है। वो जबरदस्त रोजी देने वाला है, रिज़्क़ पहुंचाने वाला है। हमारी नजरों को जो मखलूक नजर आ रही है वो तो खा रही है, जो मखलूक छुपी हुई है हमारी नजरों से ओझल है, हम उनको देख नहीं सकते, उनकी रोजी का भी जिम्मा अल्लाह के ऊपर है। एक कीड़ा जो पत्थर के अंदर छुपा हुआ है वो क्या खाता है, वो कौन जानता है, अल्लाह ही जानता है। हमारी अकल क्या सोचती है, पत्थर में क्या खाना रहेगा कीड़ा। हमारी अकल कितनी है, हमारी कहते हैं नाखून के बराबर भी नहीं है अकल हमारी। अल्लाह के इल्म के मामले में, उसकी कुदरत के मामले में हमारी अकल एक नक के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। फिर भी हमें क्या सोच रहे, इसे कहां से रोजी मिलती रहेंगी। एक जमीन में केंचुआ कीड़ा है, मट्टी में है अंदर, वो क्या खाता है मालूम नहीं है। मालूम है इसे, इसकी रोजी का जिम्मेदार कौन है, अल्लाह, बराबर उसे रिज़्क़ पहुंचा रहा है। एक पानी में है, समंदर की तह में है, कितने किस्म के जानवर हैं, कितने किस्म के कीड़े हैं, कितने किस्म के उसमें मछलियां हैं, जितने किस्म के जो है जमीन के ऊपर है उतने किस्म के जानवर और जो है मखलूक पानी के अंदर भी है। जैसे यहां घोड़ा है, पानी के अंदर भी एक घोड़ा है पानी का। जैसे यहां इंसान है, पानी का भी एक इंसान है। जैसे यहां जो है दूसरी चीजें जो हम खाते पीते, मछली, ये समुद्र की गजा अल्लाह ताला ने हमें मुहैया फरमाई। वो मच्छी होता है मालूम, हम ना अंदर दूसरे मच्छियां हैं जो मालूम नहीं। मछली में कई किस्में हैं, हजारों किस्में, और एक एक मछली कितनी बड़ी है, वो कितना खाती है, क्या खाती है, वही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला बराबर रोजी पहुंचा रहा है, कभी किसी को भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां ये बात बयान फरमाते हुए कहते हैं, जो आदमी रिज़्क़ के मामले में अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ाता है। रिज़्क़ में बरकत के सबब क्या हैं, रिज़्क़ में कब बरकत होती है, दो तीन बातें बताकर मैं इंशाअल्लाह आज के जुमा में आप लोगों के सामने बात खत्म कर दूंगा। वक्त के लिहाज से मेरा इसमें ऐसे तो 15-20 अलामतें और असबाब बयान हुए हैं रिज़्क़ में बरकत के। मैं चंद असबाब बयान करूंगा आप लोगों के सामने, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये असबाब बयान करके यानी अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में रिज़्क़ के मामले में जब बात आती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सारी कायनात की सारी मखलूकात को रोजी देने वाला वही है। और यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। यानी सूरह जो है हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो भी जानवर है उसका रिज़्क़ हमने उसके तकदीर में लिख दिया है, और जो भी इंसान है उसका रिज़्क़ हमने उसकी तकदीर में लिख दिया। इंसान इस कितने किस्म का खाना खाता, जरा गौर करके अगर हम देखेंगे, मां के पेट के अंदर है तो क्या खाता था, मां के पेट से बाहर आया तो क्या खा रहा है, उसके उम्र के लिहाज से, उसकी तबीयत के लिहाज से और उसके उस वक्त के माहौल के लिहाज से अल्लाह उसे रोजी खिला रहा है। मां जो खाती है उसमें से उसके रिज़्क़ का हिस्सा अल्लाह उसे पहुंचा रहा है। वो बच्चा मां के पेट के अंदर पलता है, बड़ा होता है, नशो नुमा होता है, और जैसे ही
9 महीने के बाद मां उसे जन्म देती है, वो दुनिया के अंदर आता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे अलग रोजी का इंतजाम किया। मां के सीने में दूध की शक्ल में उसका रोजी का इंतजाम किया। वो कुछ चबा नहीं सकता, कतर नहीं सकता, काट नहीं सकता, हजम कर नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ने दूध की शक्ल में 2 किस्म की यहां बात हुई है। अभी ये कतरने, काटने, चाबने, हाँ, हजम करने की बात अलग है। यहां मां के पेट के अंदर अल्लाह क्या रोजी देता है और मां के पेट से बाहर आने के बाद अल्लाह कैसी रोजी देता है, यह अल्लाह की कुदरत पर हमारा सबसे बड़ी जो है यानी दलील है। यहां तक कि एक जानवर भी, उसकी भी जिंदगी को अगर हम देखेंगे, वो मां के पेट में क्या खाता है, अल्लाह उसे क्या खिला रहा है। मां के पेट से बाहर आता है तो उसे भी दूध की शक्ल में ग़िज़ा दी जाती है, वो मां का दूध पीता है। जानवर को भी अल्लाह ने इनकी मिसाल बयान करते हुए कहा, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क हमने उसके खाने की मिक़दार उसके तकदीर में लिख दिया है। अब इंसान की रोजी भी अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख दिया है। लिखा कि नहीं लिखा है? मां के पेट के अंदर जब इंसान पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है और कहता है कि लिखो। फरिश्ता कहता है कि अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका रिज़्क लिखो, कब से कब तक और क्या क्या खाना है इसका रिज़्क लिखो। उसका रिज़्क उसके तकदीर में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद फरिश्ता कहता है कि और क्या लिखो? कहा इसकी उम्र लिखो, ये कितने दिन जिएगा, इसकी जिंदगी कितने दिन है। फिर उसके बाद इसकी मौत लिखो। हमारी तकदीर में हमारा रिज़्क, हमारी जिंदगी, हमारी मौत लिख दी गई है। हमें क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कितना कमाएंगे और कितना खाएंगे, ये बराबर लिख दिया गया है। उस वक्त तक मौत नहीं आती आदमी का जब तक रिज़्क बाकी है। जब उसका रिज़्क खत्म हो जाएगा तो उसे मौत आएगी। उसका रिज़्क अगर एक दाना भी बाकी है, वो एक दाना खाने तक उसे मोहल्लत दी जाएगी, वो नहीं मरेगा। लेकिन खत्म हो गया है, खाना ढेर सारा उसके सामने है, वो खा नहीं सकेगा। लुकमा उठाया हुआ भी बर्तन में फेंक देगा और मर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने वो खाना उसके तकदीर में नहीं लिखा। आदमी के तकदीर में उसका रिज़्क लिख दिया गया है, कहां खाएगा, कितना खाएगा, क्या खाएगा। और अल्लाह ताला इतना बड़ा जबरदस्त ताकत और कुव्वत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह रूम के अंदर, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर लहू इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरह रूम की आयत है। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह ने जमीन में रोजी को फैला दिया है और फिर उसके बाद उसका अंदाजा भी किया है। अंदाजे का मतलब क्या? आदमी कितना खाना उतना खाए तो उसकी तबीयत सही रहती। ज्यादा खाया क्या होता? उल्टी होता। हाँ, ज्यादा खाया वो खाना उसके पेट से बाहर आ जाता है। वो हिस्सी खाएंगा अच्छा है कर को, लेकिन वो हजम नहीं होता। तेरी तकदीर में जितना लिखा है और तेरा अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ने जो रिज़्क तुझे दिया है उतना ही खाएगा। उससे बढ़कर एक दाना भी हजम करने की उसके अंदर ताकत नहीं है। हमें क्या सोचते हैं, उन्हें इतना खाता, इन्हें इतना खाता, उन्हें वत्ता खाता। वो किसे कितना देना उसे मालूम है, उसे कि क्या खिला रहा है उसे मालूम है। एक आदमी 2 लुक़मे ज्यादा खाता है, एक आदमी कम खाता है, एक आदमी खाने का हरीश होता है। ये अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क लिख दिया है। यहां तक के मोटी बात में अगर मैं आपको कहूं तो ये बात वाज़ेह की जाती है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों बोलते हैं ये? अल्लाह ने उसके नाम वो रिज़्क लिखा है। आदमी को 2 चीजें खींच कर ले जाती, एक उसकी जिंदगी और यानी मौत, और दूसरा उसका रिज़्क।
उसका रिज़्क कहां है, वो आदमी को बराबर खींच करके ले जाता है। आदमी वहां पहुंच करके खाना खाता है जहां उसका रिज़्क है। वो बोलता है कि आज मेरा रिज़्क तुम्हारे घर में है, मैं तुम्हारे घर का मेहमान बनूंगा। आज मेरा रिज़्क दूसरे के घर में है, मैं उसके घर का मेहमान बनूंगा। इसलिए मेहमान को खाना खिलाने वाला, मेहमान नवाजी करने वाला ये न समझे मैं खिला रहा हूं, मैं उसे पिला रहा हूं, मैं उसे पाल रहा हूं। हरगिज नहीं, ये तेरा गुमान है, ये तेरी गलत सोच है। अल्लाह ताला ने फरमाया सबको रोजी देने वाला, सबको पालने वाला, सबका जो है रिज़्क पहुंचाने वाला अल्लाह है। किसे क्या खिलाएगा वो बेहतर जानता है। दस्तरखान जो बिछा होता है उसके ऊपर एक शेर लिखा होता है। खाने के लिए जो दस्तरखान बिछाते हैं, कभी देखे उसका शेर क्या होता है? शुक्र खालिक का अदा कर, शुक्र खालिक का अदा कर, आमदे मेहमान पर रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। वो किसका खा रहा है? तेरा नहीं खा रहा है। उसके तकदीर में जो रिज़्क खाने का अल्लाह ने लिखा है वो तेरे घर में है, वो तेरे घर का मेहमान बनकर आया है और उसकी तकदीर में जो रिज़्क लिखा हुआ है वो रिज़्क खा रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आता, हमारे घर की औरतों को भी समझ में नहीं आता। हमारी जहन में क्या है? मैं कमा रहा हूं, मैं जमा रहा हूं, मैं ला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं पाल रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? तुझे अकल किसने दिया? तुझे ताकत किसने दिया? तुझे समझ किसने दी? तुझे माल किसने दिया? तुझे रोजी किसने दिया? अल्लाह ने दिया। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय, अल्लाह ताला की जो है शुक्रगुजारी करने के बजाय इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है। मैं पने में आ जाता है और कहता है कि मैं खिला रहा हूं, और एक आदमी कोई मेहमान आता है उसे खिलाने और पिलाने के बारे में इतने ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी सोच, हमारे समझ के मामले में ये बात मैं आपको बता देता हूं। एक ईमान वाला, एक मोमिन, एक नमाजी, एक अल्लाह वाला हमारे घर में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफहु। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी, तुम में का कोई आदमी जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। क्या इज्जत करेगा? उसका खाना पानी देखभाल, वो उसकी इज्जत करेगा। एक मेहमान जब हमारे घर आता है, उसके खाने से, उसके हमारा पानी पीने से हमारी सोच क्या है? कम हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। बनाना, उन्हें आया तो फिर पकाना, फिर चढ़ाना, फिर नए से उसे इंतजाम करना, ये ख्याल हमेशा अपने जहन में मत रखो। ये मत रखो, ये ख्याल मत रखो, बल्कि जो है वो खाने के लिए दे दो। मेहमान नवाजी के बारे में बात आई है तो मैं आप लोगों के सामने ये जिक्र कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मदीने के सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी, अबू तलहा अंसारी मदीने के एक सहाबी है, वो सहाबी का वाकया बयान करते हैं, किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर आज भी दर्ज है। वो वाकया क्या है? अल्लाह के नबी एक मर्तबा साहबा में ऐलान करते हैं, ये मेहमान की कौन मेहमान नवाजी करेगा? हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं इनको अपना मेहमान बनाता हूं, मैं इनको अपना मेहमान बनाता हूं, मैं अपने घर ले जाता हूं इनको खिलाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू तलहा ठीक है, मेहमान आ जाएंगे तुम्हारे घर पर, जाओ घर जाओ, इंतजाम कर लो। घर आए, बीवी से पूछा,
घर में क्या है? कहा कि थोड़ा शेरवा है और चंद रोटी के टुकड़े हैं। हमारे सर के होते तो क्या करते? हम नाच नहीं है खाने, फिर किसी की बुला ले का तू कर को लाया ना बात दलिंदर। हाँ, ये एक दलिंदर घर में रह सो, ये बाहर से आया सो एक दलिंदर। अल्फाज देखो हमारे, हमारी जुबान पर जो अल्फाज आ रहे हैं, उन अल्फाज को तोलो। हम क्या कह रहे हैं? क्या अल्लाह की रहमत हमारे घर आएगी? क्या अल्लाह की बरकत हमारे घर आएगी? हमारी रोजी में बरकत होगी? हमारे ख्यालात, हमारी सोच ही अलग है। अबू तलहा अंसारी जब आकर घर में कहते हैं कि क्या है? कहा थोड़ा शेरवा है, ये देखो थोड़ी रोटी के टुकड़े हैं, बस इतना है। कहा ठीक है, मेहमान घर आ रहे हैं, जब मेहमान आएंगे ये सारे खाने पीने की चीजें ला करके उनके सामने रख देना। कहा फिर बच्चों को क्या करेंगे? कहा बच्चों को कुछ पानी पिला करके समझाकर सुला देना। ऐसी कुर्बानी आज हमें नहीं देते हैं? सुला दिए, मेहमान आ गए, शाम में घर को आए, मेहमान खाने के लिए। अब जो मेहमान आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा घर में क्या है ला करके सामने रख दो। अल्लाह के नबी भी आए, कुछ हो गए हमारे घर, अल्लाह के नबी आए, एक इल्म वाली एक नबी जैसी शख्सियत हमारे घर में आई, नेक आदमी आए हमारे घर में। अल्लाह वाले आए हैं, ला करके रख दिए। अल्लाह के नबी थोड़ा है, ये इतना शेरवा है, ये रोटी के टुकड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लेकर के दाल में डाल दिए रोटी के टुकड़े, शेरवे में मिलाते गए बिस्मिल्लाह के करके और डालते गए साहबा को। साहबा खा रहे, पेट भर गया। यहां ये सहाबी अंदर अपने घर में बीवी से कह रहे, बुझाओ चिराग, बुझाओ अंदर का। मेहमान कहीं ये न समझ ले कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। खाली बर्तन में हाथ हिलाओ ताकि मेहमान को भी ये यानी उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये भी अंदर खा रहे हैं। बर्तन की आवाज करो, खाली बर्तन में आवाज करो। शायद हमारे हाथ से ये नहीं होता है। ऐसी मेहमान नवाजी हमें नहीं करेंगे। हमारे भाई का कपड़े फट गए तो पुराने, मर्दमाने की भी बैका के भी, हाँ, ऐसी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जब ये मेहमान नवाजी करते हैं, इधर सारे मेहमान खाए, चिराग बुझा करके अंदर भूखे बैठे हुए हैं, बच्चों को भी भूखे सुला दिए हैं। जब फारिग हुए, मेहमान चले गए खा करके, सुबह आए, ये सहाबी भी नमाज को आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को बुला करके कहते हैं, अबू तलहा क्या तुम जानते हो अल्लाह ने तुम्हारे बारे में क्या खुशखबरी सुनाई? क्या तुम जानते हो? अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसका इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तलहा तुम्हारे बारे में अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दिया है। तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह को पसंद आ गई है, अल्लाह राजी हो गया तुम्हारे अमल से, और कुरान में ये आयत नाज़िल की, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये लोग अपने आप को भूखा रखकर अपने मेहमान की खातिरदारी करते हैं। अल्लाह तुम्हारी इस अदा को पसंद करके मुस्कुराते हैं। यही तो अमल था साहबा का। आज हमारी मेहमान नवाजी कैसी है? अब हमारे घर में बरकत आएगी तो कैसे आएगी? कहां से आएगी? हमारी सोच ही सही नहीं है, हमारा इरादा सही नहीं है, हमारी जो है मेहमान नवाजी सही नहीं है, हमारे मेहमान के साथ सुलूक अच्छा नहीं है, तो कहां से बरकत आएगी? मेरे मोहतरम भाइयों, खाना जानवर भी खाता है, जानवर भी खा रहा है। खाने के लिए इंसान नहीं जीना है, बल्कि जीने के लिए खाना है। खाने के लिए इंसान जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। क्योंकि मेरा अमल अच्छा हो, मेरा रब मेरे से राजी हो, और मेरा रब मेरे से खुश हो, मेरे नेकियां ज्यादा हो, मैं अल्लाह को खुश करने के काम करूं।
एक ऐसे ही मौके पर एक और साहबी का वाकया मैं आपको सुनाकर बात आगे बढ़ाता हूं। मैं पहले बोल दिया था, मेरा उन्वान बहुत लंबा है, वक्त बहुत मुख्तसर है, 10 मिनट में मैं अभी क्या बोलूंगा। खैर, जितना भी हो मैं आपके नजर कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, बड़े मशहूर सहाबी, कई हजार हदीसें ये रिवायत करते हैं, रावी है हदीस के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। एक मर्तबा ऐसा दौर आया इनके ऊपर, ऐसे हालात आए, औंधे मुंह अपना पेट जमीन से लगाकर भूख की हालत में औंधे मुंह सो करके जमीन पर आयत पढ़ रहे हैं। कौन सी आयत पढ़ते हैं? सूरे दहर की वो आयत, सूरे दहर जिसे सूरे इंसान भी कहा अल्लाह ताला ने, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, कोई शुक्रिया और बदला नहीं चाहते। वहां से अबू बकर गुजरे, उनके सामने यह आयत पढ़े। किस लिए पढ़े? शायद हो सकता यह आयत सुन करके मुझे खाने के लिए बुला कर ले जाए, मैं भूखा है बोल को बोले नहीं। यह आयत पढ़ रहे अरबी में। अरबी में इसका माना क्या है आयत का? जो आदमी अल्लाह के लिए खाना खिलाता है, कोई शुक्रिया और बदला नहीं चाहता, वो ईमान वाला है, वो मोमिन है। हमें मोमिना बनने तैयारी से नहीं रहा हमें। हजरत अबू बकर चले गए, हजरत उमर भी वहां से गुजर गए। क्यों? वो भी भूखे थे, वो भी भूख की हालत में थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए, देखा अबू हुरैरा औंधे मुंह अपना पेट जमीन से लगाकर ये बात पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं। तो अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा मेरे पीछे आओ, उठो आओ। अल्लाह के नबी समझ गए कि ये भूखे हैं, ये भूख इनको सता रही है। कहा अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। अबू हुरैरा को साथ में ले गए और कहने लगे, एक घर गए, उम्मे माबद के घर, कहा कि एक गिलास दूध दे दो। एक गिलास दूध ले लिए। अबू हुरैरा खुश हो गए, अब मेरा पेट भर जाएगा, मैं अपनी भूख मेरी मिट जाएगी। आदमी को भूख लगे, सामने खाना रखो, वो कौन-सा है, कहां से आया, हराम का है, हलाल का, ये नहीं सोचता। समझ मेरी बात है? सामने खाना रखो, उसे भूख की हालत में पहले क्या करता, वो खा लेता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन एक ईमान वाला ऐसी हालत में भी सोचता है। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गिलास दूध, इनके हालांकि अभी अल्लाह के नबी इनको दिए नहीं, दूध मांग लिए हैं, वो गिलास दूध दे दिए। अबू हुरैरा से इनके दिल में क्या ख्याल आ रहा है? अबू हुरैरा के दिल में, अब ये गिलास दूध मुझे पीने के वास्ते गया कि मेरा पेट फुल हो जाएगा, मेरी भूख मिल जाएगी, ये ख्याल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के पास असहाबे सुफ़्फ़ा हैं जो कुरान सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं, जाओ उनको बुला कर लाओ। वो कितने थे? 70 के करीब थे, 70 आदमी। अब एक गिलास दूध ले, फिर शैतान यहां चालू करा है अबू हुरैरा के दिल में, एक गिलास दूध में अब वो 70 आदमी बुला देखो, बोले तो नहीं मिलता मुझे, होगा मैं फिर भी भूखा रहा, मैं भूखेगा भूखा रहा, मुझे नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अबू हुरैरा सोचते हैं, खैर अब उन्होंने आने के बाद लाइन से खड़ा करे। अबू हुरैरा सोचते पहले मुझे देती क्या की, इधर से शुरू करते क्या की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले उनको दे दो, अभी जरा पेट में भड़का पड़गा, नहीं होता नहीं, आज ये मुझे दूध पीने नहीं मिलता और मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी। इंसान को देखो कैसा नफ्स वर्गलाता है, ये शैतान है, ये
नफ्स हमारा सबसे बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा शैतान है। ये शैतान हमारे ख्यालात बदलाता है, हमारी सोच बदलाता है, हमें बुराइयां करने पर उबारता है और बुरे काम करने पर उबारता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबी रसूल कहते हैं ये ख्याल जैसे ही पैदा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहाबा से बांट रहे हैं, सारे 70 सहाबा पी लिए। एक गिलास का दूध एक गिलास ही है। अल्लाह के नबी की क्या दुआ थी, वो क्या बरकत थी मालूम नहीं। ईमान वालों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें क्या बरकत दिया था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ों में से भी है। उनके लिए ये काम खास था। ऐसे कई मोजिज़े हुए। तो जब बांट दिया, अब अबू हुरैरा की बारी आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा वो गिलास दूध ले लो, पियो। अबू हुरैरा खुश हो गए, पिए। गिलास मुंह से निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और पियो। फिर पिए। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा से, और पियो। पिए। जब तीसरी बार अल्लाह के नबी कहते हैं और पियो, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी गुंजाइश नहीं है, मैं सैराब हो गया हूं, मेरा पेट भर गया है, मैं ज्यादा पीने की अगर कोशिश करूंगा तो वो फिर मुंह से बाहर आ जाएगा, अब गुंजाइश नहीं है, मैं सैराब हो गया हूं। तब उसके बाद वो गिलास लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा हुआ दूध पी लेते हैं और सहाबी से कहते हैं जाओ, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह किसको क्या रोजी देना है वो बराबर रोजी देता है। हाँ, जिंदगी में कई मौके ऐसे भी आते हैं इंसान रोजी की हालत में कम है, हलाल का है, उस पर सब्र करना है। रोजी मेहनत की मजदूरी ला करके आदमी मेहनत का पैसा ला करके खाता है, उस रोजी में बरकत है, उस रोजी में खैर है, उस रोजी में कुशादगी है, उस रोजी में जो है अल्लाह बरकत देता है। लेकिन जो हराम की रोजी होती है वो तुम्हें हजारों के कमाओ, वो रोजी में बरकत नहीं है। आज आदमी छोटी रोजी पर, छोटी मजदूरी पर, छोटी मेहनत करने पर खुश नहीं है, खिनात नहीं करता है, बल्कि उल्टा क्या सोचता है, अपने से ऊपर वाले को देखकर कहता है ये हमारे सामने का बच्चा परसों पैदा हुआ सो, परसों बड़ा हुआ सो, इसका बचपना हमारे हाथ में, हमारे सामने गुजरा, इसकी जवानी भी हमारे सामने गुजर रही है, ये इस उम्र में इतना सारा पैसा कमाया है। वो मिसाल देने की जरूरत नहीं है, वो मिसाल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ईमान है, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो, अपने शोहर को हराम कमाई से बचाओ। अल्लाह जो मेहनत की कमाई हलाल रिज़्क दिया है वो दोनों मिलकर के खुशी से खाओ और शुक्रगुजारी करो अल्लाह की, इसमें बरकत है। मेरे मोहतरम, मैं आपको एक और भी बात बता देता हूं जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। सूरह रूम की आयत मैंने आप लोगों के सामने बयान किया था। अल्लाह हर एक को भी रोजी दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को थोड़ा दे रहा है, किसी को बेहिसाब दे रहा है कि नहीं है? रिज़्क देने के मामले में, माल देने के मामले में, दुनियावी जिंदगी में उसे अल्लाह खिलाने पिलाने के मामले में किसी को कम दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को बेहिसाब दे रहा है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की हिकमत है। एक जगह पर अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाते हैं अल्लाह कम क्यों देता है, रोजी कम क्यों देता है, ताकि ये अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। अगर जिसे अल्लाह रोजी कम दे रहा है उसे ज्यादा दे दिया, हो सकता है ये गुनाह के काम में लग जाएगा, गुनाह करने लग जाएगा, बुराई में लग जाएगा, अल्लाह की नफरमानी में लग जाएगा। इसलिए अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानता है, उसे जो कम दे रहा है वो इसी वजह से कम दे रहा है। हाँ, एक मोमिन को अल्लाह रोजी कम देता है,
اللہ اس کی تقدیر میں کتنا لکھا اسے دیتا ہے. لیکن اس کی مثال کیا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل عملا صالحا فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم بأحسن ما كانوا يعملون. وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اسے غیب سے روزی دیتا ہے. کہاں سے دیتا ہے؟ ایک مثال بتا دیتا ہوں. نماز پڑھنے والے کی تنخواہ کتنی ہے؟ حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. کتنی تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں اسے؟ آج ہمارے اکیلے کو خرچہ کرنے کی تنخواہ 2 آدمی کو خرچ کرنے کی تنخواہ اسے اکیلے کو دے رہے ہیں. حالانکہ اس کے 20 بچے ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، اس کے 10 بچے ہیں، اس کے خاندان ہے، کچھ قبیلہ اس کا بھی ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کیسے اسے روزی مل رہی ہے؟ اللہ برکت دے رہا ہے. ایک بہت بڑی نوکری کرنے والا، لاکھوں اس کی تنخواہ ہے، لاکھوں روپے میں اس کی تنخواہ ہے، عالیشان محل ہے، کار میں پھرتا ہے اور اس کے من چاہی چیزوں کو کھاتا پیتا ہے. فائدہ نہیں ہے. اس کی دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمتیں اللہ نے اسے یہی دے دیا ہے. لیکن مومن کو یہاں تنگی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے پاس اسے بہت بڑا انعام اور ایسی روزی سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کرے گا، جنت کی نعمتوں سے اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے ایمان والو، آج جنت تمہارا ٹھکانہ ہے اور جنت میں جو ساری نعمتیں ہیں، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث میں معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ ایسی نعمتیں ہیں. ویسی نعمتیں نہ ختم ہونے والی. یہاں تو ذرا ٹیسٹ ہے کر بولے تو اسے آدمی 1 سے 4 بار کھاتا ہے. یہ بہت اچھا بنایا تھا، رے کیا بنایا تھا، منڈک کی مرچی بنایا، انہیں ایگ رائس بنایا، انہیں فلاں بنایا، ارے وہ میوے میں کیا مٹھائی بھی اس کے پاس مل رہا ہے، سیب انار بہت اچھے پھل پھلاری بیچتا ہے. لیکن جنت میں جو نعمتیں ملیں گی اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی عمدہ، کتنی اچھی ہوں گی، اس کا مزہ کیسا ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی کو داخل ہونے کے بعد جنتی انسان کو نعمتوں سے مہمان نوازی کرے گا. کھاؤ، تمہارا دل جتنا چاہتا ہے کھاؤ. دنیا میں جو تم نے تکلیف اٹھایا، مشکلیں برداشت کی، صبر کیا، آج اس کا بدلہ جنت میں ہم تمہیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہماری صبر کا بدلہ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ایک نعمت کے بارے میں، جنت کی ایک نعمت کے بارے میں بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ یاد ہے نہیں؟ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ خوش رکھے. یہ سورت میں اس کا نام ہی سورۃ الکوثر ہے. اس سورے کا نام سورۃ الکوثر. یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قیامت کے دن انعام میں دیا جانے والا ایک پانی کا ہاؤس ہے. واٹر ٹینک بولتے ہیں، واٹر ٹینک. یہ پانی کا ہاؤس، اسے کوثر کہتے ہیں. وہ کوثر کا پانی ہوگا اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاؤس پر بیٹھ کر کے اپنے ساری امت کو وہ پانی تقسیم کریں گے. دودھ سے زیادہ سفید ہوگا،
शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार वो पानी पिएगा उस हौज का, हौज कौसर का, दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। वो पानी हम ना नसीब होना नहीं, ये दुनिया के पानी को फिल्टर कर 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 को हमारे रगा करने के ढिल्ले हो गए, हड्डियां सुखले जा रही हमारे, बराबर है, हड्डियां सुखले जा रही हमारे, ये पानी फिल्टर कर को पी रहे हैं। लेकिन हौजे कौसर का पानी जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, एक बार पी लिया दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी, वो भी अल्लाह के नबी के हाथों हमें मिलेगा क़यामत के दिन। कभी सोचा उस पानी के बारे में? अल्लाह तो हमें भी वो पानी नसीब कर दे। दुनिया में यहां हम किसी एक रोजदार को पानी पिलाते हैं, पानी दे करके उसका रोजा इफ्तार कराते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हौज़े कौसर जन्नत में पिलाएगा। यहां किसी पानी पीने वाले प्यासे को हम पानी देते हैं तो अल्लाह ताला हौज़े कौसर से कल क़यामत के दिन नबी के हाथों हमें कौसर का पानी पिलाएगा। कितनी बड़ी ये इज्जत है, कितनी बड़ी नेमत है, इस पर अंदाजा लगाओ। फिर कभी मौका मिले इंशाअल्लाह आइंदा जुमा मैं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक पर जो है बात करूंगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो हमें इल्म दिया है, अल्लाह ताला उस पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अल्लाह कुरान को समझकर पढ़ने, हदीस को पढ़ने और सही बातों को जानने और सही अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे पास मेहमान आया हम उसकी कदर करने, उसकी मेहमान नवाजी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह साहबा जैसा ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह साहबा जैसा जज्बा और शौक हमारे अंदर पैदा फरमा। उन लोगों जैसी उनकी जिंदगियों में बरकतें थी, अल्लाह पर ऐसी ऐसी बरकत दिया था अल्लाह। यही हजरत अबू हुरैरा साहबी, हाँ, जो एक वक्त में औंधे मुंह पढ़ करके जो है खाने के लिए आयत पढ़ रहे थे, एक वक्त ऐसा आया मखमल के कपड़े से नाक साफ कर दिए। अल्लाह वैसी दौलत से नवाज दिया। इसलिए अल्लाह के सामने वो आयतें बार बार पढ़ते रहो अपनी दुआ में। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह बादशाह बनाने वाला भी तू है, फकीर बनाने वाला भी तू है, इज्जत देने वाला भी तू है और जलील करने वाला भी तू है। सब कुछ तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। ये दुआ हमेशा अल्लाह से मांगते रहो। अल्लाह जो मुझे रिज़्क़ दिया है ये बांट कर खाने में बरकत है, मेहमान नवाजी करने में बरकत है, नमाज पढ़कर खाने में बरकत है, कुरान की तिलावत घर में करने से बरकत आती है, अल्लाह की रहमत आती है। यही चंद बातें आज के खुतबे का खुलासा है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह